Hello viewers, please accept my very warm welcome. Today we will study about the canary. Canary is a singing word like a parrot. It is the domestic form of the wild canary. It is a small singing bird in the finch family originating from the Micronesian island. It was brought to Europe by Spanish sailors. It is a story about a boy named Somu and a little yellow canary. His father gave him this very bird as a gift. The singing bird is different from a local singing bird. To get such a bird, Somu became very happy and excited. He named her Molly. In recent days, he looked after the bird properly. Somu was a matter of jealousness with his new singing bird, but gradually he lost interest in Molly and did not feed her. It was the worst time when he forgot to give her water too. Without water and care, the situation of Molly became very miserable. On the other hand, Somu was busy with his new toy gun. One of the friends of Molly, Chirpy the sparrow, was very sad for her. In the early next morning, Somu's mother did not hear the sweet sound of canary. She, she peered into the case and found the Molly lying half dead. The whole matter was understood by her mother, and she was angry with his son. She scolded him. After that, Somu felt sorry. Thereafter, he looked after Molly, the little canary, very well. With this story, writer wants to tell a message to us that the situation of a flying bird is not so good in the case. In its domestic form, its life depends upon the mercy of anybody else. It loses its freedom. The story describes the situation of a bird in a rich family where the man lives who is affectionate to the bird. Just imagine the situation of a pet bird who is being brought in such a family where there is no love. It is only kept to show the status. The another view of the story is to give lesson to a boy like Somu. The message is to care its pet bird properly. If we see the proper situation, or whenever we may look into the matter, we may find that there is no alteration of nature's care. Nature provides a bird whole sky, and we provide him a teeny cage. At least it is worse to think about Molly like canary, who has to spend miserable life in captive cage. But the end of the story is pleasant when Somu becomes ready to care Molly, named canary bird. अब इसके बाद हम इसको इसमें जो दिया हुआ है वोकेबलरी सब उसको भी देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम हिंदी में भी समझेंगे। हिंदी में आइए थोड़ा सा इसको हम हिंदी में समझते हैं, ठीक है। यह कहानी एक गाने वाले पक्षी कैनरी की है। यह मूल रूप से माइक्रोनेशियन द्वीप की रहने वाली है। यह जंगली कैनरी का घरेलू रूप है। इसे यूरोप में स्पेनिश सौदागर लेकर आए थे। यह कहानी पशु प्रेमी के आंखों में आंसू भर देगी, लेकिन इसका अंत सुखद है जब सोमू को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अपने पालतू कैनरी, जिसे वह मौली नाम दिया था, का अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। इस कहानी का प्रारंभ एक आदमी के द्वारा एक चिड़िया को अपने बेटे को उपहार देने से प्रारंभ होता है।
यह उपहार कैनरी नामक पंछी का है, जिसे पाकर सोमू बहुत खुश होता है और उसे मौली नाम देता है। वह इस पक्षी की अच्छी खातिरदारी करता है। उसके मित्र इस अनोखे उपहार को देखने के लिए आते हैं। इस पक्षी को लेकर वह अपने मित्रों के बीच ईर्ष्या का पात्र भी बनता है, पर जब उसे नया खिलौना मिलता है तो वह मौली को भूल जाता है। भोजन तो दूर, वह उसे पानी से भी वंचित कर देता है। इस भीषण कष्ट से मौली रो देती है। रोते रोते वह अर्धमृत अवस्था में पहुंच जाती है। अगले सुबह जब सोमू की माँ के कान में जब मौली की मधुर तान नहीं पहुंचता है तो वह पिंजरे में झांकने जाती है। वहाँ उसे अर्धमृत अवस्था में मौली मिलता है। वह उसे पिंजरे से निकालती है और उसके पंखों को सहलाती है धीरे धीरे, प्यार से। वह शीघ्र ही वस्तुस्थिति को समझ जाती है कि मौली के इस हालत के लिए सोमू जिम्मेवार है। वह अपने बेटे से कहती है कि वह उसे लेकर बहुत लज्जित है। माँ के डांट और दुख को देखकर सोमू भी रो देता है और पश्चाताप करता है तथा आगे से मौली की तत्परतापूर्वक देखभाल करने लगता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार एक पक्षी के स्वतंत्रता को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि कैसे एक आत्मनिर्भर पंछी जो खुले आसमान में सैर करता था, कैसे बाग बगीचे पेड़ की डाली पर फुदक फुदक कर उड़ता था, पर जब उसे पिंजरे में रख दिया जाता है तो पूरी दुनिया पिंजरे में कैद हो जाती है। अब एक बूंद पानी के लिए भी उसे दूसरे पर निर्भर रहना होता है। अगर पिंजरा में उसे रखने वाला उसे भोजन और पानी देना बंद कर दे तो वह भूख प्यास से वंचित होकर मर जाएगा, भूख प्यास से वह मर जाएगा। अतः इस कहानी के माध्यम से लेखक उन अमीरों को एक शिक्षा देना चाहता है कि प्रदर्शन के लिए जब आप किसी महंगे विदेशी पक्षी को ले आते हैं तो फिर उसका ध्यान भी रखिए। उसके प्रति ध्यान नहीं रखना एक क्रूरता और निष्ठुरता है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें कैद से, पिंजरा से मुक्ति प्रदान करें, या फिर ऐसे नभचर आकाश में विचरण करने वाले उड़ने वाले पंछी को पिंजरा में कैद ही मत कीजिए। तो ये इस हिसाब से ये हुआ। अब इसमें जो कुछ वोकैबुलरी हैं, कुछ वर्ड हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सीड्स इसमें दिया है कि उसको खाने के लिए उसकी माँ सीड्स देती थी। तो सीड्स क्या होता है? सीड्स का मतलब होता है बीज, ठीक है। उसके बाद है लंप ऑफ शुगर, मतलब शुगर का ढेला, या हाथ में तरहत्थी में जो थोड़े अमाउंट में हम देते हैं, कटोरा में भर करके चीनी, तो वो हो सकता है। उसके बाद है केज। केज माने क्या होता है? तो केज माने होता है पिंजरा। उसके बाद है जिलियस। जिलियस का मतलब होता है ईर्ष्या। उसके बाद है एवरीडे। एवरीडे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी। उसके बाद होता है फन। फन का मतलब भी होता है दिलचस्पी। अनदर डे मतलब दूसरे दिन। उसके बाद पियर्ड। पियर्ड का मतलब झांका, देखा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसके बारे में इसका ये कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे वोकैबुलरी के बाद कि आपके किताब का इसको प्रोनाउंसिएशन करने का और इसका फिर इसको हिंदी में समझाने का, ठीक है। तो हिंदी में इसको देखिए। ये सोमूज फादर हैड गिवन हिम ए वंडरफुल गिफ्ट। सोमूज फादर हैड गिवन हिम ए वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। सोमू के पिता ने जन्मदिन के अवसर पर सोमू को एक उपहार प्रदान किया, एक अद्भुत उपहार प्रदान किया, एक अद्भुत उपहार दिया। उसके बाद है ए लिटिल येलो कैनरी। अब कैनरी जो होता है सो लाल टाइप का भी होता है और पीला भी होता है। तो उसके पिताजी ने उसे पीला कैनरी दिया। उसके बाद है सोमू नेम्ड हर मौली। सोमू ने उसका नाम मौली रख दिया। मौली सैंग सॉफ्टली एंड स्वीटली। मौली बहुत ही मुलायम आवाज़ में और मधुर आवाज़ में, मधुर तान में गाती थी।
At first Somu looked after the bird. पहले प्रारंभ में सोमू उस पंक्षी की अच्छी तरह से देखभाल करता था। Each day he cleaned her cage. प्रत्येक दिन वह उसके पिंजरे को साफ करता था। Gave her seeds. उसको बीज देता था, खाने के लिए बीज, अनाज। And fresh water. और साफ पानी। At tea time he gave her lump of sugar. चाय के समय में वो शुगर का ढेला भी उसको प्रदान करता था। मौली was very happy in her cage. मौली अपने पिंजरे में बहुत खुश थी। मौली's friend were very jealous to her. मौली के मित्र उससे बहुत ही स्पृहा भाव रखते थे, जलते थे। सोमू's friends would come to see मौली every day. सोमू के मित्र प्रतिदिन उसे देखने के लिए आते थे। She would sing sweet song for them. वह उसके लिए मधुर गीत गाती थी। After some weeks सोमू lost interest in मौली. कुछ दिनों के बाद सोमू की दिलचस्पी मौली में ख़त्म हो गई। Now it was no longer fun to look after her. अब उसको देखभाल करने में वो पूरा तत्पर नहीं होता था, दिलचस्पी नहीं लेता था। One day he did not clean the cage. एक दिन उसने उसके पिंजरे को साफ नहीं किया। Another day he did not feed her. and दूसरे दिन उसने उसको भोजन नहीं दिया। And then, और तब worst of all, सबसे बुरा तो ये हुआ कि he forget to give her water. वह उसे पानी देना भी भूल गया। Molly was very unhappy. मौली बहुत ही दुखी था। सोमू loved her no longer. सोमू loved her. अब सोमू से प्यार नहीं करता था। And she could not sing because she was so thirsty. और वह नहीं गा सकती थी क्योंकि वह बहुत ही प्यासी थी। She went to her water dish. वह अपने पानी के तस्तरी के नज़दीक गई, hoping there might be just a drop of water, but there was not any. कि एक बूंद भी पानी उस पानी के डिश में होगा, लेकिन वो पानी को वहाँ नहीं पाई। ट्वीट ट्वीट कॉल्ड मौली लाउडली. मौली ने जोर से ट्वीट ट्वीट की ध्वनि उत्पन्न की। बट सोमू वाज बिजी प्लेइंग विथ हिज न्यू टॉय गन एंड टुक नो नोटिस ऑफ द लिटिल बर्ड. लेकिन सोनू अपने नए टॉय गन से खेलने में मशगूल था, व्यस्त था। उसने छोटे से पंछी के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शी क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर. वह चिल्लाती रही, रोती रही, और उसके मित्र उसको देख करके बहुत खेद जता रहे थे। टीयर्स रैन डाउन हर फेस. आंसू उसके चेहरे पर आ गए। ओह, आई एम इन दिस केस एंड आई कैन नॉट गेट आउट टू फाइंड फूड एंड वाटर फॉर माई सेल्फ. मैं इस पिंजरे में हूँ और अपने लिए भोजन पानी नहीं खोज सकती हूँ. शी सेड. उसने कहा. चिरपी द स्पैरो वाज सैड टू एंड सेड. चिरपी गोरैया भी उसे देख करके बहुत दुखी थी और बोली, वी विश वी कुड हेल्प यू. काश हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते थे. द लिटिल कैंडी ड्रॉप्ड हर लिटिल येलो हेड एंड प्रे टू गॉड. छोटी कैंडी ने अपने छोटे पीले गर्दन को झुका दिया और ईश्वर से प्रार्थना करती रही. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले दिन सुबह सोमूज मदर केम टू वेक हिम. सोमू की माँ उसे जगाने के लिए आई. शी वाज सरप्राइज्ड व्हेन शी डिड नॉट हियर द स्वीट वॉइस ऑफ द कैंडी. वह आश्चर्यचकित हो गई जब उसने कैंडी के मीठे ध्वनि को नहीं सुना. शी पियर्ड इनटू द केज. वह पिंजरे में झांकी. मौली वाज लाइंग देयर हाफ डेड. मौली अर्धमृत अवस्था में लेटी हुई थी. सोमूज मदर टुक हर आउट ऑफ द केज केयरफुली एंड स्ट्रोक्ड हर येलो फीदर्स. सोमू की माँ ने उसे पिंजरे से निकाला और बहुत ध्यान से उसके पीले पंखों को सहलाया. शी फेड द लिटिल बर्ड विथ फ्रेश सीड्स एंड वाटर. उसने छोटे पंछी को ताज़े अनाज और पानी
का भोजन कराया। शी वॉज वेरी एंग्री विथ हर सन, वो अपने बेटे पर बहुत क्रुद्ध हुई। सोमू व्हाट ए ड्रेडफुल थिंग, सोमू यह कितना भयानक चीज़ है कि इफ़ यू कैन नॉट लुक आफ्टर दिस पुअर क्रीचर, अगर तुम इस गरीब बेचारे निसहाय पक्षी की देखभाल नहीं कर सकते हो, यू हैव नो राइट टू कीप इट, तुमको इसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। आई एम सो असेम्ड ऑफ यू, मैं तुमसे बहुत लज्जित हूँ। सेड द मदर, माँ ने कहा। सोमू ब्रस्ट इट इनटू टीयर्स एंड फेल्ट सोरू, सोमू के आंखों में आंसू छलक गए और उसने खेद अनुभव किया और उसने पश्चाताप का अनुभव किया। देर आफ्टर ही लुक्ड आफ्टर मॉली, उसके बाद वह मॉली का देखभाल करने लगा। द लिटिल कैनरी वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। अब इसके बाद इसमें आपको एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को देखिए। एक कैनरी क्या है, तो कैनरी उसमें दिया है वह टिक लगाने के लिए है, ठीक है। C3 क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 में आप देखेंगे C3 क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे ए कैनरी इज ए स्मॉल येलो बर्ड, कैनरी क्या है, तो एक पीला पंछी है। उसके बाद है मॉली वॉज वेरी हैप्पी विथ सोमू बिकॉज ही टुक गुड केयर ऑफ हर, मौली सोमू से बहुत खुश था क्योंकि वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। उसके बाद है सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मौली बिकॉज ही हैड गोट ए न्यू टॉय गन, सोमू ने अपना इंटरेस्ट मौली पर से खो दिया क्योंकि उसके पास अब एक नया टॉय गन था, ठीक है। उसके बाद है मौली वॉज लाइंग हाफ डेड, मोलू अर्धमृत अवस्था में पड़ा हुआ था। बिकॉज क्योंकि सी हैड नॉट बीन फेड विथ फूड एंड वाटर, क्योंकि भोजन और पानी से उसको नहीं खिलाया गया था। व्हाट ए ड्रेडफुल थिंग सेड सोमूज मदर, द ड्रेडफुल थिंग वाज दैट सोमू वाज इग्नोरिंग मौली। इसके बाद आप देखेंगे ये C4 क्वेश्चन है, इसमें इसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला सीक्वेंस है सोमूज फादर गेव हिम ए कैनरी ऑन हिज बर्थडे। दूसरे नंबर पर होगा इन द बिगिनिंग सोमू रेगुलरली गेव सीड एंड फ्रेश वाटर टू मौली। तीसरा में होगा मौलीज फ्रेंड वेयर जेलियस ऑफ हर। उसके बाद होगा सोमूज मदर। उसके बाद होगा चौथा में होगा आफ्टर सम टाइम सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मौली। उसके बाद पांचवा में होगा मौली कुड नॉट सिंग बिकॉज शी वाज थर्स्टी। उसके बाद छठा पॉइंट होगा, छठा सीक्वेंस में होगा सबसे नीचे में है द लिटिल बर्ड क्राइड एंड हर फ्रेंड फेल्ट सॉरी फॉर हर। सातवां पॉइंट है सोमूज मदर सो द मौली वाज लाइंग हाफ डेड इन द केज। आठवां पॉइंट है सोमूज मदर फेड द लिटिल बर्ड। उसके बाद होगा सोमूज मदर स्कॉल्डेड हर सन। उसके बाद सोमू फेल्ट सॉरी एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड टेकिंग गुड केयर ऑफ मौली। इस हिसाब से इसको तैयार कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे हाउ डिड सोमू लुक आफ्टर द कैनरी इनिशियली सोमू रेगुलरली गेव सीड्स एंड फ्रेश वाटर टू द कैनरी ईच डे ही क्लीन्ड हर केज। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू नो द सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मौली, राइट 3 थिंग्स। वन डे ही डिड नॉट क्लीन द केज, अनदर डे ही डिड नॉट फीड हर, and then worst of all he forget to give her water। उसके बाद हम लोग देखेंगे why was Molly in tear, Molly was in tears because she was helpless, she was not able to get food and water for herself। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन what did Somu's mother do after she took Molly out of her cage। Somu's mother took her out of the cage carefully and stroked her yellow feathers. She fed the little bird with fresh seeds and water। उसके बाद छठा क्वेश्चन है
Find words from the story which are opposite in meaning to the following. इसके बाद हम देखेंगे अभी मतलब ये जो जिगजैग वे में लिखा हुआ है, इसको हम लोग, ये जो क्वेश्चन है C4 अभी हम लोग कर रहे हैं। C4 के बाद ये हुआ, अभी हम लोग इसको किए हैं C5 जिसमें क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग बढ़िया से किए हैं। इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसमें मैं उंगली से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से इसको समझने का कोशिश कीजिए। और उसके बाद है अपोजिट वर्ड होगा। अपोजिट वर्ड के बाद होगा कि हॉलीडे में आप जाते हैं और आप जो है अपने पेट डॉग को किसी दोस्त के यहाँ छोड़ देते हैं, तो कुत्ते के साथ जो आपका दोस्त है वो कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको, इसके बारे में है। इससे पहले जो कुछ अपोजिट वर्ड है C6 में देखिए, C6 में है अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे फाउंड है तो फाउंड का क्या होगा, लॉस्ट, रिमेम्बर्ड तो फॉरगेट, सैड तो हैप्पी, स्टिल तो उसका हो जाएगा फ्रेश। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, जिसमें आप एक कुत्ता को छोड़ जाते हैं अपने मित्र के पास, तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए कुत्ते के साथ, तो उसको हमने लिखा है आई विल से माई फ्रेंड टू केयर माई पेट डॉग प्रॉपरली, he should give food and water. I will say my friend to make him bath at time. I will also advise my friend to get him routine medical checkup at time. ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया। और बहुत मार्मिक ढंग से इसको लिखा गया है कि एक पक्षी को जबकि उसको छोड़ दिया जाता है पिंजरे में, तो उसकी क्या गति होती है। अगर उसको ठीक से देखभाल नहीं किया जाए तो वो बड़ा हेल्पलेस अनुभव करता है। तो अगर आपके पास कोई पंछी है तो इस माध्यम से लेखक कहता है, ये कहानीकार कहता है कि आप उसकी बढ़िया से देखभाल करें। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ इससे संबंधित अगर दिक्कत हुई हो, चाहे इसमें कुछ त्रुटि हो, तो सुझाव दें। मैं इसको अगले वीडियो में इसको दूर करने का कोशिश करूँगा। इसको बढ़िया से आप अध्ययन कीजिए, इसका लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी कुछ लिखेंगे ताकि आप इसको और बढ़िया से इससे लाभान्वित हों। इसमें हमने चर्चा किया कि कहाँ से आया कैनरी भी गाने वाला पंछी है, इसके अलावा भी कुछ गाने वाले पंछी होते हैं, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा हमने तुलनात्मक अध्ययन भी किया, अपने तरफ से इसको समझाने का कोशिश भी किया। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए और लाभ उठाइए।